today's lecture, we will explore an important topic, levels or divisions of taxonomy. Taxonomy is the science of identifying, naming, and classifying living organisms, and it helps us understand the incredible diversity of life on Earth. In this lecture, we will break down taxonomy into its key divisions and understand how scientists study organisms at different levels. By the end, you will have a clear concept of how life is organized and connected through evolution. Outlines of today's lecture: we will begin with microtaxonomy, which include alpha taxonomy, the analytical phase, and gamma taxonomy, the biological phase. Then we will move to macrotaxonomy, which focuses on beta taxonomy, synthetic phase. Together, these divisions help us understand how organisms are identified, classified, and studied at different levels. Before we begin the topic, let's look at the objectives and learning outcomes. After studying this lecture, you will be able to define taxonomy and understand its importance in biology. You will learn to identify the three levels of taxonomy: alpha, beta, and gamma taxonomy. You will also be able to explain the taxonomic hierarchy from kingdom down to species. In addition, you will differentiate between classification, identification, and nomenclature. You will apply basic methods to classify and identify organisms, and most importantly, understand the evolutionary relationships among living organisms. These outcomes will help you build a strong foundation in systematics. Microtaxonomy, it means taxonomy at micro level, means species or within species. So microtaxonomy is the branch of taxonomy that deals with species and subspecies. In simple terms, it is the taxonomy at the species level. It focuses on identifying, describing and classifying organisms within a species. और इसमें हम चूंकि माइक्रो लेवल पर हैं, हम ऊपर नहीं जाएंगे स्पीशीज से, मीन जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इसको हम टच नहीं करेंगे. ये लेवल स्पीशीज और स्पीशीज के अंदर ही होगा. इसलिए इसको माइक्रो टेक्सोनोमी कहते हैं, क्योंकि स्पीशीज के दरमियान जो वेरिएशंस होती है, जो चेंजेस होती है, वो बहुत ही स्मॉल होती है और उनको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए जो माइक्रो लेवल पर टेक्सोनोमी है, ये सिर्फ स्पीशीज और सब स्पीशीज में ही होगी. हमारी जो स्टडी होगी, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं या डिस्क्राइबिंग करते हैं या क्लासिफाइंग करेंगे, तो ये हम स्पीशीज और स्पीशीज के अंदर सब स्पीशी लेवल पर जाएंगे. Microtaxonomy has two important stages. The first is alpha taxonomy, which is also called as analytical phase. In this stage, scientists identify species based on morphological characters such as size, shape and structure. तो इस फेज में, अल्फा फेज में या एनालिटिकल फेज में, अल्फा टेक्सोनोमी लेवल पर हम साइज, शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. The second stage is gamma taxonomy, which is also known as biological phase. Here, scientists study species using genetics, ecology, and evolutionary relationship. So, microtaxonomy helps us understand not just what species are, but also how they vary and relate to each other at a deeper level. Alpha taxonomy is the branch of taxonomy that concerned with characterization, discrimination, and naming of species. Or you can say it is that level at which species are characterized and named. In this stage, scientists study organisms based on their morphological features such as size, shape, and structure. So this helps in identifying differences between species and classifying them accurately. Alpha taxonomy mainly focus on describing and naming species. So it is considered the basic or foundational level of taxonomy. Simply, it provides the first step in understanding biodiversity
by clearly identifying and distinguishing different species. So first हम एक स्पीशी लेंगे, फिर उसके कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स में हमने कहा शेप, साइज, मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर उस बेस पर हम उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। जब उनको अब हम अलग अलग कर देंगे तो फिर हम उसको नेम देंगे, अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग नेम दे देंगे। सो दिस इज द बेसिक, बिल्कुल स्टार्ट है, फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। गामा टेक्सोनोमी, it refers to intraspecific variations and evolutionary studies, like, for example, study of speciation. It is concerned with population systematics. Gamma taxonomy is concerned with the study of intraspecific variations. That means differences within the same species. It also focuses on evolutionary studies, especially the process of speciation, which explains how new species are formed over time. In this stage, scientists do not just describe the species. जिस तरह हमने अल्फा फेज में पढ़ा कि डिस्क्रिप्शन है, तो it's not just description, but it's the study to study their genetic variation, ecological interactions, and evolutionary relationship. Gamma taxonomy is closely related to population systematics, where entire populations are analyzed instead of individual organisms. Because their broad and advanced approach, gamma taxonomy is often considered as systematics. It helps us understand how species vary, evolve, and give rise to new species. तो जिन species में सब species होंगी, within the species हम जब study करेंगे तो वो चूंकि बहुत माइक्रो लेवल पर होंगी, और वो चेंजेस और वो जो वेरिएशंस होंगी वो बहुत स्मॉल और बहुत माइन्यूट होंगी, तो उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए इसको सिस्टमैटिक्स भी कहा जाता है। ट्रू, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है इनको फाइंड आउट करने के लिए। Taxonomy is the branch of taxonomy that deals with the classification of genus and higher taxa, such as family, order, and class. It focuses on organizing already identified species into a natural system. जैसे हमने पढ़ा कि अल्फा फेज में हम किसी स्पीशी को कैरेक्टराइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसको नेम देते हैं। तो जब हम किसी स्पीशीज को अल्फा लेवल पर उसको हमने डिस्क्राइब किया, नेम दे दिया, तो अब उस स्पीशी को हमने रिलेटेड जेनस में रखना है, और रिलेटेड जेनस को फिर हमने उसी के रिलेटेड फैमिली में भी रखना है, और रिलेटेड फैमिली को हमने उसके रिलेटेड ऑर्डर में, और ऑर्डर को क्लास में, और फिर फाइलम, किंगडम और डोमेन में। लाइक फॉर एग्जांपल लूपस एक स्पीशी है, तो लूपस को हमने जेनस कैनस में रखना है क्योंकि कैनाइन है, और हमने फिर इसको रिलेटेड फैमिली कैनेडी में रखना है क्योंकि ये कैनाइन रखते हैं, और फिर इसको हमने ऑर्डर कार्निवोरा में रखना है क्योंकि ये कार्निवोर्स है, फिर इसको हमने ममेलिया में रखना है क्लास क्योंकि दे आर मैमल्स, और फिर हमने सो ऑन इसको वर्टिब्रेटा में रखना है, और एनिमेलिया में, और फिर यूकैरियोटा में हमने इसको रखना है। तो इसमें हम ऑलरेडी जो आइडेंटिफाइड स्पीशीज है, इट refers to the arrangement of species into natural system of lower and higher categories. So unlike microtaxonomy, which studies species in detail, macrotaxonomy just arrange them into lower and higher categories based on similarities. So it has only one stage, that is beta phase, or इसको synthetic phase भी कहते हैं, it's also known as synthetic phase. In this stage, scientists bring together all available information and classify species into a well-structured system. So microtaxonomy is essentially about classification at broader level. It can simply be observed as the process of classification itself. In actual practice, it is often very difficult to clearly separate these different stages like alpha, beta, and gamma taxonomy because they overlap and integrate with each other. दूसरी बात यह है कि in most animal groups, taxonomy mainly operates alpha and beta levels. बस mostly ज्यादातर animals में हम alpha और beta level पर जाते हैं, focusing on identification and naming. जबकि ऐसे बहुत कम स्पीशीज होंगे और बहुत कम ग्रुप्स होंगे जहां पर जो टेक्सोनॉमी है एट रीच टू गामा लेवल because it's very advanced level and where detailed studies of intraspecific variation and evolution are carried out. Examples के तौर पर हम
इसमें बर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं, इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरा। तो ये कुछ ऐसे स्पीशीज हैं या ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं जहां पर टेक्सोनॉमी जो है वो गामा लेवल तक पहुंच चुकी है। और इट्स वेरी सिंपल, जहां पे एनिमल्स में सिर्फ स्पीशी है और सब स्पीशी लेवल नहीं आया हुआ है, उनमें चेंजेस नहीं आए हुए हैं, और स्पीशीज है और सब स्पीशीज नहीं है, तो वहां अल्फा लेवल से बात शुरू होती है और बीटा पर खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे ग्रुप्स लाइक देखिए बटरफ्लाईज हो गए, लाइक बर्ड्स हो गए, या फील्ड माइस हैं, तो या फिशेस में भी है बहुत सारे, जहां पे सब स्पीशीज मौजूद हैं, तो वहां पर गामा लेवल तक बात पहुंचेगी। लेकिन अगर सब स्पीशीज उनमें नहीं है मौजूद, तो फिर हम गामा लेवल तक नहीं जा सकते हैं। सो इन रियलिटी टेक्सोनॉमी इज नॉट स्ट्रिक्टली डिवाइडेड, it works as continuous and interconnected system. Better understanding the gamma phase, let's take an example. This image shows different species and variations of Danaeus butterflies. Although they look similar to you, but there are clear differences in color, patterns, wing shape and markings. अगर आप देखिए ये इनके मेन स्पीशी है और फिर ये इनके सब पॉपुलेशंस और सब स्पीशीज है, तो आप इनके पैटर्न्स को देखें, इनके विंग शेप को, कलर को और मार्किंग को देखें, दे आर वेरी मच डिफरेंट. So these differences represent intraspecific variation, which is a key focus of the gamma taxonomy. So इस केस में हम गामा टेक्सोनोमी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हर ग्रुप में और तमाम एनिमल्स में गामा टेक्सोनोमी नहीं आता. नॉर्मली हम अल्फा और फिर बीटा टेक्सोनोमी पर ही होते हैं. So by studying such variations, scientists can understand how species adopt, evolve, and sometimes form new species. So this is a perfect example of how evolution works within real population. माइक्रो और मैक्रो टेक्सोनोमी में डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करने के लिए डिस्कस करते हैं इसको. माइक्रो टेक्सोनोमी जब हम स्पीशीज लेवल पर या सब स्पीशी लेवल पर स्टडी कर रहे होते, चाहे हम फील्ड में हैं या लैब में हैं, तो ये माइक्रो टेक्सोनोमी है. फॉर एग्जांपल ये टाइगर है, और टाइगर की स्पीशी पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम माइक्रो टेक्सोनोमी में काम कर रहे हैं और हम अल्फा फेज में हैं. लेकिन अगर हम इस टाइगर की सब स्पीशीज में चले जाएं, व्हाइट टाइगर्स आपने देखे होंगे, नाम सुना होगा, व्हाइट टाइगर्स इनकी सब स्पीशी है. अब व्हाइट टाइगर जब हम सब स्पीशी लेवल पर चले गए, तो है तो माइक्रो टेक्सोनोमी, बट नाउ इट इज गामा फेज, और ये माइक्रो टेक्सोनोमी है. लेकिन जब हमने स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लिया, सब स्पीशीज को भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो इस स्पीशी को अब हमने नेम देना है, और नेम देने के बाद नेक्स्ट फेज जो है हमने उसको जेनस में रखना है. तो जब हम उसको जेनस में रखेंगे, तो जब हम जेनस में आ गए, अब हम माइक्रो टेक्सोनोमी से निकलकर मैक्रो टेक्सोनोमी में आ गए, क्योंकि अब हमने उसको रिलेटेड जेनस में रखना है, फिर फैमिली में, फिर ऑर्डर में, क्लास में, फाइलम, किंगडम और डोमेन में. इट्स वेरी सिंपल कि अगर हम टाइगर की स्पीशी पर काम कर रहे हैं तो ये माइक्रो टेक्सोनोमी है, अल्फा फेज है. अगर हम टाइगर की सब स्पीशीज पर काम कर रहे हैं तो ये माइक्रो टेक्सोनोमी है और गामा फेज है. और जब हमने इसको नेम दे दिया और अब यहाँ गए, तो अब हम टाइगर को हमने उसके रिलेटेड जेनस में रखना है और फैमिली में. तो इसको इन हायर कैटेगरीज में और हायर लेवल पर उसको अरेंज करने के लिए, हायर टेक्सा में रखने के लिए जब हम आए हैं, तो नाउ दिस फेज इज मैक्रो टेक्सोनोमी. एक एग्जांपल लेते हैं अल्फा और गामा फेज को क्लियर करने के लिए. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप ये समझ जाएं कि केनस लूपस वोल्फ को कहते हैं, केनस ऑरियस जेकाल को कहते हैं, और केनस फेमिलियरस डॉग कहते हैं. अगर हम जेनस लेवल पर काम कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये मैक्रो टेक्सोनोमी है. लेकिन अगर हम जेनस से नीचे स्पीशीज में चले गए तो ये माइक्रो टेक्सोनोमी है और अल्फा फेज है. और अगर हम सब स्पीशीज में चले गए तो आप समझ जाएं कि ये माइक्रो टेक्सोनोमी है और गामा फेज है. अब एक मिसाल लेते हैं जेनस कैनस की. जेनस कैनस में कई सारे स्पीशीज हैं. हमें एक स्पीशी मिली और हमने उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया. हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी स्पीशी है. जब हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए तो वो लूपस निकला, कैनस लूपस निकला, वोल्फ. और इस तरह एक और स्पीशी थी, इसको जब हमने डिस्क्राइब किया, कैरेक्टराइज किया, तो वो कैनस ऑरियस निकली. और जब एक और स्पीशी जो थी वो भी हमें नहीं पता था, लेकिन हमने जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो वो कैनस फेमिलियरस निकली. अब हम फर्दर
विद इन इंट्रास्पेसिफिक जो हम बात कर रहे हैं, बार बार विद इन द पॉपुलेशन हम बात कर रहे हैं। अब हमने कैनस लूपस की जो पॉपुलेशन थी ना, डिफरेंट पॉपुलेशंस थी मुख्तलिफ जगहों पे, उसको हमने स्टडी करना शुरू किया। तो जब हम स्पीशी लेवल पर स्टडी कर रहे थे, ये अननोन स्पीशीज थी, और इनको जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे, तो ये फेज था माइक्रोटेक्सोनोमी, लेकिन अल्फा फेज था। अब हम लूपस जो है, कैनस लूपस जो है, वोल्फ की डिफरेंट पॉपुलेशंस को जाके स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। तो अब हम गए, हमें एक स्पीशी मिली और उसको हम नहीं पता था, लेकिन जब हमने इसको स्टडी करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये तो वो मेन स्पीशी है, कैनस लूपस लूपस। ये जो थर्ड नेम आ गया, ये वो सब स्पीशी का नेम आ गया। और अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये माइक्रोटेक्सोनोमी है, बट ये गामा फेज है। और मैंने आपको बता दिया कि गामा फेज तमाम एनिमल में नहीं होगा, ये बहुत स्पेसिफिक ग्रुप्स में होगा। हमने एक और पॉपुलेशन को स्टडी किया और हमें पता चला कि ये तो सब पॉपुलेशन है इसी कैनस लूपस की, लेकिन ये अल्बस है, ये उसकी सब स्पीशी है, तो कैनस लूपस अल्बस ताओ। हमने एक और पॉपुलेशन स्टडी की और हमें पता चला कि वो कैनस लूपस अरबस है। फिर हमने एक और पॉपुलेशन स्टडी की और उसका पता चला कि ये कैनस लूपस कैम्पेस्ट्रिस है। और एक और स्पीशी की हमने जब स्टडी की तो हमें पता चला कि ये कैनस लूपस चेंको है। तो अब ये वोल्फ के 5 डिफरेंट सब स्पीशीज हो गए। एक इनका अपना मेन हो गया और 4 उसके सब स्पीशीज हो गए, अल्बस, कैनस लूपस अल्बस, कैनस लूपस अरबस, कैनस लूपस कैम्पेस्ट्रिस और कैनस लूपस चेंको। तो नाउ आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि ये गामा फेज है माइक्रोटेक्सोनोमी का, और ये अल्फा फेज है माइक्रोटेक्सोनोमी का। और अगर इससे ऊपर हम जाते हैं तो ये मैक्रो लेवल होगा। इस पिक्चर में आप गामा फेज को देख सकते हैं बड़ी क्लियरली कि टुंड्रा वोल्फ, कैनस लूपस अल्बस, कैनस लूपस अरबस, अरेबियन वोल्फ, ये आर्कटिक कोल्ड रीजन्स में रहता है, थिक लाइट कलर फर है इसका। और ये अरेबियन वोल्फ है जो कि डेजर्ट टाइप जो इन्वायरमेंट होता है उसमें अडॉप्टेड है। स्मॉलर बॉडी है इसकी, लाइटर कोट है। इसी तरह जो कैनस लूपस कैम्पेस्ट्रस है, स्टेप वोल्फ जिसको कहते हैं, ये ग्रासलैंड्स में रहता है, मीडियम साइज है और स्पार्स फर है इसके ऊपर। इस तरह मंगोलियन, और इसको आप हिमालयन वोल्फ कहते हैं, कैनस लूपस चैंको, ये माउंटेन्स में रहता है और हाई एल्टीट्यूड पर ये अडॉप्टेड है, वहां रहता है। सो देयर आर मोर देन 30 या ओवर 30 सब स्पीशीज ऑफ कैनस लूपस जो कि रिकग्नाइज हो गए हैं। सो दिस इज एक्चुअली नाउ, जब हम उसके सब स्पीशी मेन जो कैनस लूपस है, जब हम उसकी सब स्पीशीज को हमने डिस्क्राइब किया और उस पर काम कर रहे थे, तो ये एक्चुअली माइक्रोटेक्सोनोमी का गामा फेज था और ये पॉपुलेशन वेरिएशन थी। और दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स और वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन इसको आप कह सकते हैं, या इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन इसको आप कह सकते हैं कि एक स्पीशी के अंदर इतनी सारी वेरिएशन है। अब थोड़ा सा मैक्रोटेक्सोनोमी और बीटा फेज को स्टडी करते हैं। देखिए, वोल्फ जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, कैनस लूपस माइक्रो लेवल पर, अल्फा और गामा दोनों फेजेस हमने वहां पे पढ़ ली। अब जब कैनस लूपस आ गया हमारे पास और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट कर लिए, तो अब इसको हमने जेनस में रखना है। तो इस लूपस को हम रखेंगे जेनस कैनस में, और जेनस कैनस को हम रखेंगे फैमिली कैनेडी में, फैमिली कैनेडी को हम रखेंगे कार्निवोरा में, कार्निवोरा को रखेंगे हम क्लास मेलिया में, क्लास मेलिया को रखेंगे वर्टिब्रेटा में, और इस तरह वर्टिब्रेटा को हम रखेंगे कैंडम एनिमेलिया में, और एनिमेलिया को इंडू यूकेरियोटा। So now that is this is macrotaxonomy and this is beta phase. Thank you for watching and listening. If you have any question, please ask your questions in the comment section.